students, I hope you are doing well. I am Pramod Chanjoshi. Today we will start understanding quadrilateral exercise 3.3 part 3. This is part 3, question number 5. The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measures of each of the angles of the parallelogram. Suppose this is a parallelogram and adjacent angle are 3x and 3x and 2x. This is A, B, C and D. Let the adjacent angles of a parallelogram be 3x and 2x. 3x and 2x. इधर मान लीजिए इसको 3x and 2x. 3x and 2x. 3x plus 2x equal to 180 degree. Since adjacent angles of a parallelogram are supplementary. So 5x equal to 180 degree, x equal to 180 upon 5. 5 3 is 15, 5 6 is 30, 36. X equal to 36. One angle equal to 3x. 3x, that is 3 into 36, 108 degree. Another angle equal to 2x equal to 2 into 36, that is 72 degree. This is angle D. This is angle C. Angle D equal to angle B equal to 108 degree. This is opposite angle of parallelogram. This is opposite angle of a parallelogram. बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ना? हम यहाँ पर देखिए angle C equal to angle A equal to 72 degree. These are opposite angles of a parallelogram. ये opposite angle है, ये equal होंगे, तो angle A B C D यहाँ पर सारे angle यहाँ पर निकाल लिए गए हैं. Now question number 6. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each angle of a parallelogram. This is a parallelogram. ABCD adjacent angle equal measure. Suppose करो ये x है दोनों. Let each adjacent angle be x. तो क्या हो जाएगा? x plus x equal to 180 degree. Since the adjacent angle adjacent angles
of a parallelogram are supplementary. Supplementary. So 2x equal to 180 degree and x equal to 180 upon 2, that is x equal to 90 degree. X equal to 90 degree, this x equal to 90 degree. So angle A equal to angle C, angle A equal to angle C equal to 90 degree. Angle B equal to angle D equal to 90 degree. Opposite angle of parallelogram. Opposite angles of parallelogram. ये बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि ये एडसेंट एंगल 90 डिग्री ये इक्वल हैं, ये 90 के, ये 90 के हो जाएंगे और ये भी ये अपोजिट एंगल है, ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा. Now dear student, question number 7, the adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measure x, y and z. ये x निकालना है, y निकालना है और आपको z, you have to find z. State the properties you use to find that. जिसको फाइंड करने में जो जो प्रॉपर्टी लगेंगी आप उसको बताएंगे, उसको लिखेंगे. अब यहाँ पर आप देखिए एंगल HOP, ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. यहाँ पर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये एंगल क्या कहेंगे इस एंगल को? HOP प्लस P, इस एंगल को O कह लेते हैं, इस एंगल को O कह लेते हैं. एंगल HOP प्लस एंगल O या PO समथिंग, दिस एंगल O कह लीजिए इसको. एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन एंगल, ये लीनियर पेयर जो है वो 180 डिग्री के सम दोनों का लीनियर पेयर का 180 डिग्री. तो HOP एंगल HOP प्लस एंगल O कितना है? 70 डिग्री. 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल HOP इक्वल टू वी ट्रांसपोज 70 टू राइट हैंड साइड माइनस 70 डिग्री. बच्चों समझ में आ रहा है ना? देखिए एंगल HOP इक्वल टू 110 डिग्री. तो ये आपका 110 डिग्री आ गया. ये कितना आ गया? 110 डिग्री फाइंड हो गया HOP. अब आपका एंगल X इक्वल टू HOP, एंगल HOP दैट इज आपका 110 आ गया. ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये प्रॉपर्टी कौन सी है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो x आपका कितना आ जाएगा? 110 डिग्री. अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? अल्टरनेट एंगल हैं, तो y इक्वल टू 40 डिग्री. ये कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल्स. y इक्वल टू 40 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल हैं, ये अल्टरनेट एंगल है. अब आप देखिए ये एंगल 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री. तो z इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री. ये कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब यहाँ पर z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ गया. तो ये हमने सारी प्रॉपर्टी इसमें बता दी है, आपको समझ में आ गया होगा.
Now question number 8. The following figures GUNS and RUNS are parallelogram. ये दोनों पैलोग्राम है. Point X and Y length are in centimeter. तो लेंथ ये सेंटीमीटर में है. आपको you have to find the length of X, measure of X and Y. X और Y की वैल्यू आपको बतानी है. तो 3x इक्वल टू 18. ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ये इक्वल होंगी. तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram. So x equal to 18 upon 3, that is 6 centimeter, and 3y minus 1 equal to 26. These are also opposite side. ये भी opposite side parallelogram की है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पर देखिए opposite sides of parallelogram. तो ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी. ये अपोजिट साइड है, इसके इक्वल ये होगी. तो 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 हो जाएगा. तो ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी. तो 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 हो जाएगा. ये 1 माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा. तो आपका 3y इक्वल टू क्या हो गया 27. तो y इक्वल टू 27 अपॉन 3 दैट इज y इक्वल टू 9 centimeter. So hence x equal to 6 centimeter and y equal to 9 centimeter. x equal to 6 centimeter आ गई वैल्यू और y equal to 9 centimeter ये वैल्यू आ गई. अब ये सेकेंड पार्ट देखिए. तो ये यहाँ पर ये डायगोनल है. ये डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों पार्ट बराबर होंगे. ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा. ये यानी कि RO इक्वल टू ON हो जाएगा. तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन पहले इसको लिख लीजिए. y प्लस 7 इक्वल टू 20 हो जाएगा. ये क्या है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. ये बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे. तो y इक्वल टू 20 माइनस 7 will transpose 7 to राइट हैंड साइड. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब दूसरा इक्वेशन क्या बनी, ये भी डायगोनल ये बाइसेक्ट होंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि RO इक्वल टू ON हो जाएगा. आप समझ रहे होंगे. तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा. और y की वैल्यू हम यहाँ से 13 यहाँ से रख देंगे. x प्लस 13 इक्वल टू 16. तो ये भी क्या है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये देखो, अब ये आपका x इक्वल टू 16 माइनस 13 दैट इज x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. हैंस x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ये बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कैसे इसकी वैल्यू निकाली हमने. आपको समझ में आया होगा. नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा पॉज करके दोबारा देखिए, वीडियो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. प्लीज थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.